Chairman sir, प्लीज माननीय I would like to apprise the House about the statement by the President of the United States of America बहुत महत्वपूर्ण सुन लीजिए on 30th July 2025 regarding applicable tariff on bilateral trade from 1st August 2025. On 2nd April 2025, the US President had issued an executive order on reciprocal tariffs imposing additional duties ranging from 10% to 50% on imports from its trading partners. A baseline duty of 10% has been effective from 5th April 2025. The additional duty on India was announced at 26%, including baseline tariff of 10%. Originally, the full country-specific additional duty was to be effective from 9th April 2025, but was postponed initially for 90 days on 10th April 2025 and further extended up to 1st August 2025. Honorable Chairman sir, India and the US entered into negotiations for a fair, balanced and mutually beneficial bilateral trade agreement in March 2025 with a target to complete the first tranche of the agreement by fall of 2025. The two sides finalized the detailed terms of reference to enter into negotiations of the BTA on 29th March 2025 during the first physical round of discussions held at New Delhi. Thereafter, 4 physical rounds of negotiations have taken place between both sides in New Delhi and Washington, D.C. to work towards finalization of the BTA in accordance with the agreed terms of reference. In addition, there have been many virtual meetings between the two sides. Mr. Chairman, sir, the implications of the recent development are being examined by the government. The Ministry of Commerce and Industry is engaged with all stakeholders, including exporters and industry, for taking feedback of their assessment of the situation. The government attaches the utmost importance to protecting and promoting the welfare of our farmers, workers, entrepreneurs, exporters, MSMEs, and all sections of industry. We will take all necessary steps to secure and advance our national interests. Mr. Chairman, sir, in just over a decade, India has rapidly transformed from being one of the fragile 5 to the fastest growing major economy in the world. We have risen from the 11th largest economy to one of the top 5 economies, driven by our reforms, hard work of our farmers, MSMEs and entrepreneurs. It is also widely expected that we will become the 3rd largest economy in a few years. Today, international institutions and economists see India as the bright spot in the global economy. India is contributing to almost 16% of global growth. Mr. Chairman, sir, in the last decade, the government has taken transformative measures to promote India as the manufacturing hub of the world, driven by the Make in India initiative. India's young, skilled and talented workforce is driving innovation and competitiveness
of Indian industry. Our exports have steadily increased during the last 11 years. In an increasingly protectionist world, India has done mutually beneficial trade agreements with UAE, UK, Australia and EFTA countries. We are also committed to similar trade agreements with other countries. We are consistently working for the welfare of the farmers and Indian agriculture to promote prosperity and ensure food security. Dola ji, I warn you. Please come out. Please. Dola ji, please. Dola ji, bahar वहां से. Dola ji, don't disturb. Please. Don't disturb. Please. The government is confident that we will continue our fast-paced journey of inclusive growth and sustainable development towards the goal of Viksit Bharat 2047. Chairman sir, आत्मनिर्भरता की ओर भारत आत्मविश्वास के साथ बढ़ रहा है. बहुत बहुत धन्यवाद. अंग्रेजी में भी हिंदी में पढ़ना चाहिए. अंग्रेजी में भी पढ़ना चाहिए. अंग्रेजी पढ़ लिया. अंग्रेजी हिंदी में भी पढ़ना चाहिए. मैं पीछे से पढ़ लूंगा. आप जहां से पढ़ना हो. मैं सदन को 30 जुलाई 2025 को अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा 1 अगस्त 2025 से द्विपक्षीय व्यापार पर लागू होने वाले टैरिफ के विषय पर दिए गए वक्तव्य के बारे में अवगत कराना चाहता हूं. 2 अप्रैल 2025 को अमेरिकी राष्ट्रपति ने रेसिप्रोकल टैरिफ पर एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किया था, जिसके तहत अपने व्यापारिक साझेदारों से आयात पर 10% से 50% तक एडिशनल ड्यूटी लगाने की बात कही गई थी. 10% की बेसलाइन ड्यूटी 5 अप्रैल 2025 से लागू हो गई थी. भारत पर एडिशनल ड्यूटी 10% के बेसलाइन टैरिफ सहित कुल 26% की घोषणा की गई थी. मूल रूप से फुल कंट्री स्पेसिफिक एडिशनल टैरिफ 9 अप्रैल 2025 से प्रभावी होने वाला था, लेकिन इसे शुरू में 10 अप्रैल 2025 को 90 दिन के लिए स्थगित कर दिया गया और बाद में 1 अगस्त 2025 तक और बढ़ा दिया गया. सभापति महोदय, भारत और अमेरिका ने मार्च 2025 में एक न्यायपूर्ण, संतुलित और पारस्परिक रूप से लाभकारी द्विपक्षीय व्यापार समझौते BTA के लिए बातचीत शुरू की, जिसका लक्ष्य 2025 के फॉल यानी अक्टूबर-नवंबर 2025 तक समझौते के पहले चरण को पूरा करना था. दोनों पक्षों ने 29 मार्च 2025 को नई दिल्ली में आयोजित पहली फिजिकल मीटिंग की चर्चा के दौरान द्विपक्षीय व्यापार समझौते की बातचीत शुरू करने के लिए विस्तृत टर्म्स ऑफ रेफरेंस TOR को अंतिम रूप दिया. इसके बाद दोनों पक्षों के बीच नई दिल्ली और वॉशिंगटन DC में 4 दौर में फिजिकल मीटिंग्स हुई है, ताकि निर्धारित टर्म्स ऑफ रेफरेंस के अनुसार द्विपक्षीय व्यापार समझौते के अंतिम रूप के लिए काम किया जा सके. इसके अलावा दोनों पक्षों के बीच कई वर्चुअल बैठकें भी हुई है. अध्यक्ष महोदय, सरकार हालिया घटनाक्रम से होने वाले प्रभावों का परीक्षण कर रही है. वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय निर्यातकों और उद्योग सहित सभी हितधारकों से संवाद कर इस विषय पर उनके आकलन की जानकारी ले रहा है. सरकार
हमारे किसानों, श्रमिकों, एंटरप्रेन्योर्स, उद्यमी, निर्यातकों, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों और उद्योग जगत के सभी हितधारकों के कल्याण की रक्षा और संवर्धन को सर्वोच्च महत्व देती है। हम अपने राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित करने और आगे बढ़ाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएंगे। अध्यक्ष महोदय, मात्र एक दशक से भी कम समय में भारत फ्रैजाइल 5 अर्थव्यवस्थाओं में से निकलकर दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बन गया है। हम अपने रिफॉर्म्स और अपने किसानों, एमएसएमई और उद्यमियों की कड़ी मेहनत के बल पर 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से शीर्ष 5 अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन गए हैं। यह भी अपेक्षित है कि हम कुछ ही वर्षों में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाए। आज अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं और अर्थशास्त्री भारत को वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक ब्राइट स्पॉट के रूप में देखते हैं। भारत वैश्विक विकास में लगभग 16% का योगदान दे रहा है। अध्यक्ष महोदय, पिछले दशक में सरकार ने भारत को विश्व के विनिर्माण केंद्र के रूप में बढ़ावा देने के लिए मेक इन इंडिया के अंतर्गत परिवर्तनकारी कदम उठाए हैं। भारत की युवा कुशल और प्रतिभाशाली वर्कफोर्स भारतीय उद्योग की इनोवेशन और प्रतिस्पर्धा की क्षमता को निरंतर मजबूत कर रही है। पिछले 11 वर्षों के दौरान हमारे निर्यात में भी लगातार वृद्धि हुई है। तेजी से संरक्षणवादी होती दुनिया में भारत ने संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, यूके, ऑस्ट्रेलिया और एफ्टा यानी 4 देशों का समूह, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, लिechtenstein और आइसलैंड देशों के साथ पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापार समझौते किए। हम अन्य देशों के साथ भी इसी तरह के व्यापार समझौते करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम किसानों और भारतीय कृषि के कल्याण के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं, जिससे खाद्य सुरक्षा और समृद्धि सुनिश्चित की जा सके। सरकार को विश्वास है कि हम विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की ओर समावेशी और सतत विकास की अपनी तेज गति वाली यात्रा जारी रखेंगे। अध्यक्ष महोदय, आत्मनिर्भरता की ओर भारत आत्मविश्वास के साथ बढ़ रहा है। धन्यवाद।